गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एचपी बोर्ड का सीरीज़ बी का केमिस्ट्री का पेपर मार्च 2023 का सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आर ओहम मीटर। ऑप्शन बी। In dry cell, the cathode is made up of graphite carbon rod. The units of rate constant for first order reaction are second inverse. The order of reaction for rate law expression is half plus 3 by 2, that is 4 by 2, that is 2. The solid substance on the surface of which adsorption occurs is called adsorbent. The number of unpaired electrons in Ni2 plus is 3d8, तो 2 unpaired electrons हैं, answer 2. Write the valence shell electronic configuration of cerium. It is xenon 54, 4f2, 6s2. The IUPAC name of this compound is potassium trioxalate chromate 3. When we react with chloroform and alcoholic KOH, aniline changes to isocyanide, carbyl amine, phenyl carbyl amine. Along with it, KCl and water is formed. This reaction is called carbyl amine reaction. On acid hydrolysis, we convert cyanobenzene first into benzene cyanamide and then into benzoic acid. Draw the structure of chromate ion. So CrO4 2 negative, so 2 doubly bonded oxygens and 2 singly bonded oxygens with negative charges. The compound which prevent the oxidation of food materials are called antioxidants. The IUPAC name of oxalic acid is ethane 1,2-dioic acid. Arsenous sulfide is an example of negative colloid. All sulfides are negative. Which does not belong to second transition series? So copper, it belongs to first transition series. Chlorophyll is coordination compound of magnesium. Aliphatic amines are more basic than ammonia because of electron releasing alkyl group. Formalin is a 40% aqueous solution of formaldehyde. And on reacting acetic acid with PCl3, we get acetyl chloride and phosphorus acid. The correct oxidation number of cobalt in this compound, x plus 6 into minus 1 is equal to minus 3. So x is equal to plus 3. Option D is the correct answer. Give the reactions at cathode and anode of lead acid storage battery during charging and discharging. So at anode, lead acts as anode and gives electrons to form lead sulfate. At cathode, lead dioxide takes electrons along with sulfate ions and H plus ions and forms lead sulfate and water. So this is during discharging. During charging or recharging, the opposite reactions occur. That is, lead sulfate will take electrons to form lead and sulfate ions, and lead sulfate will give electrons to form lead dioxide and sulfate and hydrogen ions. How much charge is required for reduction of 1 mole of copper ion to copper? As 2 moles of electrons are needed, so charge required is 2 Faraday. Transition metals generally form colored compounds. It is due to the presence of incomplete N-1 d subshell. Under the influence of approaching ligands, the degenerate set of 5 or d orbitals gets split into 2 sets, one with lower energy called T2g and one with higher energy called Eg. So the electron present in lower set will absorb light from white light and jump to higher energy level, and the transmitted light gives color to the compound. So because transition elements have partially filled d orbitals, so they show color. What is lanthanide contraction? The slow and steady decrease in the size of atoms of tripositive or tripositive ions with increase in entropic number is called lanthanide contraction. Scandium Sc3 positive ion is colorless while Cr3 positive ion is colored. This is because इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो जंप करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है और इस तरह से ट्रांसमिटेड लाइट में कोई कलर नहीं होता है। जबकि Cr3 पॉजिटिव आयन में कॉन्फ़िगरेशन में D में 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो जंप करके कलर दे सकते हैं कंपाउंड को। डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने में मिलता है जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि नाइट्राइट, तो ये N से भी कंबाइन कर सकता है और O से भी। तो इस तरीके से ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट जो है और पेंटा अमीनो नाइट्राइटो O कोबाल्ट, ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं। व्हाट आर कीलेटिंग एजेंट्स? तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटलाइन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक रिंग लाइक कंपाउंड बनाते हैं तो इस तरह के लिगेंड्स कीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको कीलेट कहा जाता है। बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हेक्साअमीन कोबाल्ट 3+ आयन। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 18 3d7 4s2, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोबाल्ट जो है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d6। इसे बोर्ड में प्लस की जगह माइनस साइन यहाँ दे दिया है जो कि एक मिस्टेक है। तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d6। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होके पेयरिंग करा देता है इस तरह से, D के 3 ऑर्बिटल्स में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 2 empty D, 1 S और 3 P जो हैं ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 6 अमोनिया लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच इनको डोनेट करके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेंगे जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और इस तरह से कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर rate constant of first order reaction. So for the reaction R changes to products, rate is minus dr upon dt is equal to k into r raised to power 1. अब R को इस साइड लेंगे, dt को इस साइड लेंगे तो हमारे पास आया माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करने पर ये इसका इंटेग्रल आया एल एन आर और इसका इंटेग्रल आया माइनस के टी प्लस आई। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई हम वो टाइम लेंगे जब टी ज़ीरो है, अप्रोच कर रहा है ज़ीरो, तो उस टाइम पे आर कंसनट्रेशन इनिशियल कंसनट्रेशन के बराबर होगी। तो इक्वेशन बन जाएगी एल एन आर नॉट इजकल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई। ये ज़ीरो हो गया तो आई इजकल टू एल एन आर नॉट आ गया। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी गेट एल एन आर इजकल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, या फिर एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू प्लस के टी, या के इज इक्वल टू 2.303 upon t log r naught upon r. This is the integrated rate equation for first order reaction. Then calculate what are first order reactions. So reactions in which the rate is dependent on the concentration of only one reactant species are called first order reactions. For example, the examples of first order reactions are N2O5 decomposes to give NO2 and oxygen. Calculate the half-life time period of first order reaction whose rate constant is 2 minute inverse. We know that T half is equal to 0.693 upon K. K is 2 minute inverse. Dividing we get the answer 0.3465 minutes. IUPAC name of this compound will be N-methyl ethanamine. Chemical reaction for Gabriel thalamide synthesis. This reaction is carried out to prepare primary amines. तो हम थैलीमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम थैलीमाइड बनेगा, उसको इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो N इथाइल थैलीमाइड बनेगा। इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो थैलिक एसिड अलग हो जाता है और इथाइलामीन बन जाता है। हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेनामीन इनटू इथेनामीन? तो ये स्टेप अप कन्वर्जन है। मीथेनामीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल बनाया
उसको HCl से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड बनाया, उसको पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके मिथाइल साइनाइड बनाया, उसकी रिडक्शन कराई तो इथेनामीन बन गया। कंप्लीट द रिएक्शन, एनालीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड तो ये एन एसिटाइल एनालीन बन जाएगा। एंटीबायोटिक्स, chemical substances used to reduce body temperature or fever are called antibiotic. For example, paracetamol. Name a substance which can be used as antiseptic as well as disinfectant. Phenol in different concentration. 0.2 में antiseptic and 1% में disinfectant. Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमीन, मीथेनामीन। कंप्लीट द रिएक्शन, साइनाइड की रिडक्शन कराई तो ये बन गया एल्काइल अमीन। अ सॉल्यूशन ऑफ हेक्सा एक्वा निकल इज ग्रीन बट सोल्यूशन ऑफ टेट्रासाइनाइडो निकल इज कलरलेस, क्योंकि इस केस में कन्फिग्रेशन आती है 3D8 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस केस में निकल की केस में यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन 3D8 है, लेकिन साइनाइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देता है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कराता है और इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है और इसलिए इट इज़ कलरलेस इन नेचर। What are homoleptic complexes? Complexes in which the ligands are all of same type are called homoleptic, and complexes in which ligands are of different types are called heteroleptic complexes. Write 4 differences between physical adsorption and chemical adsorption. तो physical adsorption में weak van der Waals forces होते हैं between adsorbent and adsorbate. chemical adsorption में strong chemical bonds होते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे भी हो जाती है और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इसका रेट डिक्रीज करता है, उसमें हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। ये इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स बनती हैं, उसमें मोनोमॉलिकुलर लेयर बनती है केमिकल एड्जॉर्प्शन में, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन की स्पेसिफिसिटी नहीं होती है जबकि ये केमिकल रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। What is Brownian movement? The zigzag motion of colloidal particles in a colloidal soul is called Brownian motion. Write chemical reactions for aldol condensation. तो aldehydes containing alpha hydrogens will add to each other. इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन इधर आ गया, CH2 CHO पोर्शन इधर कार्बन पे अटैच हो गया और एज अ रिजल्ट ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। लेकिन फर्दर हीट करने पे ये OH और ये H वाटर बना के निकल जाता है और इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। इन केस ऑफ वुल्फ किचनर रिडक्शन, जब हम एल्डिहाइड को सोडामाइड और KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिडक्शन को वुल्फ किचनर रिडक्शन कहा जाता है, एल्केन बनता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, उसमें एसाइल हेलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ऐड कराएंगे, इसका H और इसका Cl HCl बना के निकल जाएगा और एसिटाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहा जाता है। वाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस H+ आयन के रिलीज को फैसिलिटेट करता है, इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एसिटिक एसिड में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन? क्योंकि एसिटोफिनोन में मिथाइल ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, जबकि बेंजोफिनोन नहीं देता है। तो जब हम एसिटोफिनोन को आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो येलो कलर्ड आइडोफॉर्म के CH3 के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो हैं एसिटोफिनोन की प्रेजेंस को शो करते हैं। गिव द केमिस्ट्री ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है, 2 फेलिंग सोल्यूशंस A और B का मिक्सचर होता है। फेलिंग A इज कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, फेलिंग B इज अल्कलाइन पोटेशियम टार्टरेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज रोशेल सॉल्ट।
जब एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन डाला जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अगर ये प्रेसिपिटेट्स बने तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और अगर नहीं बने तो एल्डिहाइड नहीं है, देन इट इज कीटोन। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटोफेनोन इनटू बेंजोइक एसिड? पहले हम जिंक अमेल्गल और HCl से इसकी रिडक्शन करा के इसको इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करा के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट द रिएक्शन। तो जब हम मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, एसिड हाइड्रोलिसिस पे बेंजोइक एसिड बनाएगा। So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.